Good morning, students. Once more, welcome to everyone, the student of class 9. Now, this is your English literature class, and we are going to study the first chapter, The Lost Child. This story is written by Mulk Raj Anand. The story, The Lost Child, is written by Mulk Raj Anand. In this story, we are going to study about a fair in which a boy goes with his parents, means the father and mother, and is very aggressive to buy all the things which are being sold by the sellers in the market, and their parents don't get agree. They are always in negative and they don't buy anything to the child, and at the end we get a question whether the child is lost or what has happened to their parents. So in short, we can say that this story gives us message to the society, mainly for the unmatured students, whether they must get aggressive to their parents or to the things which are available in the world. See, a child goes to a fair with his parents and he is very happy and excited, wants to buy some sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? See here, pay attention. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and the toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? This question. Why then he refuse when someone else offers them to him? Once upon a time, when the child was going with his parents in the fair, he was very excited. वो बहुत खुश था. जैसे कि बच्चे जब मेला में जाते हैं या कहीं उनके मन की चीज़ें उन्हें कहीं पसंद है, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा बच्चे कितने खुश होते हैं. उस तरीके से वो बहुत खुश था और उसकी अंदर से इच्छा थी कि पेरेंट्स मुझे स्वीट्स, खिलौने जो भी वहाँ दिख रहे थे वो मुझे ला के दे. Why then does he refuses when someone else offers them to buy? उसके पेरेंट्स तो उन्हें कुछ खरीद के दिया नहीं, लेकिन अंत में एक व्यक्ति उसे मिलता है. कोई एक इंसिडेंट ऐसी बनती है कि एक व्यक्ति मिलता है और सारी चीज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए. आई वॉन्ट ओनली माई फादर एंड मदर. So, we will start now the story. See here. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a glad-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in a bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. जो समय था, जिस समय ये कहानी लिखी गई है और जिस समय की ये इस कहानी की घटना है, वो फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग का समय था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड alleys
emerged a gaily clad humanity. हर जगह के रास्ते एकदम खुशी का माहौल था, सारे लोग के चेहरे पे स्माइल नजर आ रही थी. एली इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. क्लैड खुशी से सारे लोग मानवता के नाम पर, घूमने के नाम पर सारे मानव, सारे इंसान सभी खुशी नजर आ रहे थे और वो लोग मेला की ओर जा रहे थे. सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे थे. सम अदर सैड बीइंग कैरिड इन ए बाम्बो एंड बुलर कार्ट्स. पहले जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह चला करती थी तो कुछ लोग बैलगाड़ी पे जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग बीइंग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफर. और एक लड़का जो है अपने पापा के कदमों के साथ कभी इधर कभी उधर, कभी पापा के पैर के बीच से ही निकल जाया किया करता था. मतलब वो इतना खुश था कि अपने पापा के पैर के अंदर से निकल जाना, इसका मतलब he was very excited for the fair to go there and see all the things which are being sold and which are being made there for entertainment of for the children. See, come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stares of refusal in his eyes. What happened कि जैसे ही बच्चा मेला में जाना आगे बढ़ा तो बहुत सारे चीज़ों को देखकर, जैसे कि खिलौने के शॉप्स थे वहाँ लगे हुए थे, तो उसकी आंखें जो हैं उसके खिलौने, सारे खिलौने और चीज़ों के ऊपर से हट नहीं रही थी और देखने में लग गया. तो उसके पिताजी वगैरह, माँ वगैरह पीछे मुड़ के देखी तो बच्चा पीछे छूटा हुआ है खिलौने के पास. तो वो लोग एक आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, मतलब चलो जल्दी इधर आओ, डांट के. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in his eyes. देखिए कितना इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है. बच्चा क्या किया कि जैसे ही उनके पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई, बच्चा सब काम छोड़ के ही वॉज ओबीडियंट टू देयर कॉल, उनकी आवाज़ को सुनकर वो तुरंत उनके पास चला गया. आज के बच्चे ऐसे नहीं है, रिजिड हो जाते हैं, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चुक्का में हाथी चाहिए. बताओ कोई पेरेंट्स एक छोटा सा चुक्का में हाथी कैसे देगा? लेकिन ये बच्चा क्या वैसा था? नहीं. ही वॉज वेरी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, टू देयर कॉल. His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उसकी आंखें की जो आंख में जो तस्वीर बन चुकी थी खिलौने की, वो हट नहीं रही थी. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. और जब पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं तुम्हें वो खिलौने नहीं लेने हैं, ये बातें, ये सारे इशारे उसके आँख में धसे हुए थे. I want that toys, he pleaded. वो बहुत ही करेज से बोला कि मुझे वो खिलौने चाहिए. His father looked at him with his red eyes in his familiar tyrant's way. Familiar tyrant's way. आपको पता है कि घर का मालिक जो होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है और ज़रूरी भी है. जब हमारे घर का मालिक अगर वही हमारे प्रति फ्रेंडशिप रखेगा तो हमारा परिवार अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा, उसे थोड़ा सा कठोर निर्दयी का रूप लेना पड़ता है. सिमिलरली क्या हुआ है यहाँ पे देखा जाए तो हिज फादर लुक्ड एट हिम विथ हिज रेड आइज.
एकदम आंखें लाल करके। जैसे ही बच्चा बोला कि नहीं पापा मुझे वो खिलौने चाहिए, तो उसके पिताजी ने क्या किया कि एकदम आंख को लाल करते हुए गुस्से में बोला कि नहीं, इन हिज फैमिलियर टिरेंट्स वे, जैसे कि अपने और भी परिवार के लोगों में गुस्सा कभी करते थे या करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने बोला नहीं, देखा बेटे की तरफ। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। और माँ भी पिताजी से कम नहीं थी। जल्दी वो लोग मार्केट में बच्चों के लिए कुछ खरीदना नहीं चाहते थे, तो माँ भी क्या की, अपने ही घर के व्यवहार के सामने अपनी उंगली बच्चे के सामने पेश की और देखो बोली कि देखो बेटा तुम्हारे हाथ आँख के सामने क्या है। तो बच्चा देखा कि माँ ने उंगली दिया है, क्यों, पकड़ के आगे बढ़ने के लिए। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड pale like a melting gold as it was swept across the miles and miles of even land। आगे जैसे ही बढ़े बच्चे, परिवार के साथ सभी लोग आगे बढ़े तो देखे कि सरसों का फील्ड लगा हुआ है। एकदम सरसों का फूल पीला कलर का होता है, आपको पता ही है। जैसे कि एकदम ऐसा लग रहा था कि हर जगह एकदम सोने की तरह। मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, सोना पिघला हुआ है, हर जगह एकदम शाइनिंग नजर आ रही थी। स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जितने भी वहाँ जमीन है, इवन लैंड, जहाँ तक बच्चे, उनके पेरेंट्स, जो भी वहाँ भीड़ क्राउड थी वो देखते थे, तो उन लोगों को लग रहा था कि नहीं, ये काफ़ी देखने लायक दृश्य है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गड्डी purple wings interrupting the flight of lone back bee of butterfly in search of sweets of flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them could still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught in his hand. Then his mother gave a cautionary call, come child come, come unto the path। आगे जैसे ही बढ़े, खिलौने की बात खत्म हुई तो मस्टर्ड फील्ड आया, वहाँ भी बच्चा को कुछ देखने को नहीं मिला। आगे जैसे ही बढ़े तो क्या हुआ कि ड्रैगन फ्लाइज वेर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरप्टिंग, बहुत सारे कीड़े मकोड़े तितलियाँ इधर उधर उस फील्ड में क्या हो रहे थे, दिख रहे थे। बच्चा सोचा कि क्यों नहीं मैं रास्ते से उतर कर और जाकर फूल को तोड़ लूं, तितलियां पकड़ लूं। वो काफ़ी सुंदर दृश्य था स्टूडेंट, इसलिए बच्चा बहुत अट्रैक्ट हो गया था और वो चाहता था कि मुझे कुछ तितलियां मिल जाए, कुछ फ्लावर्स मिल जाए, ताकि मैं एंजॉय करते हुए आगे मेला की ओर बढ़ चलूं। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द पथ, रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि बच्चा फील्ड में जाना चाह रहा था। तब तक माँ ने आवाज़ लगा दी कि नहीं बेटा, क्या करो, जल्दी तुम रास्ते पे आ जाओ। देखो स्टूडेंट, एक्चुअली इस कहानी में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। बार बार मैं बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो भी बच्चा की इच्छा है वो कोई पूरा नहीं कर रहा है, उनके यानी खासतौर के उनके मम्मी पापा, और बच्चा नाखुश होते जा रहा है पूरे मेले में। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। अंत में बहुत सारे इसमें लिटरेचर है, इसमें बहुत सारे फ्रेज और क्लॉज यूज़ किए गए हैं। चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं आपको सारे फ्रेज, क्लॉज, इसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जैसे सिमिली है, मेटाफर है, ये सारा चीज़ हाईलाइट करके दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। ज़रूरत पड़ा तो वर्ड मीनिंग को पढ़ाते समय आप नोट करो जो भी मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being hovered soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. Come child come, his parents called from the shades of grove where they had seated themselves on the edge of well. He ran towards them.
A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the coming of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. "Come, child, come," they called to the child, who had now gone running in wild scraper round the banyan tree. See, बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारी चीज मिलती है। कितने पंक्षियां मिली, कितने इंसेक्ट्स मिले, कितने फ्लावर्स मिले, हाँ, कितने टॉयज उसके सामने से गुजर गए, लेकिन उसके आंख में, उसके मन में यही एक विश्वास बैठा हुआ है कि नहीं, अगर मैं पेरेंट्स से अगर कुछ मांगता हूँ तो फिर वही बोलेंगे कि नहीं, कुछ नहीं, कम चाइल्ड कम, और फिर मुझे जाना पड़ जाएगा। इसलिए बच्चा भी कुछ नहीं बोलता और फिर वो आगे की ओर बढ़ जाता है। एक्चुअली मस्टर्ड फील्ड में बनैन ट्री रोड जब चल रहा है तो उसके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ फल के हैं, कुछ फ्लावर्स के हैं। तो बच्चा वो सब चीज़ को देख के बड़ा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि नेचुरल थिंग्स सो ब्यूटी, नेचुरल थिंग्स आर्टिफिशियल में कभी नहीं मिल सकता है। एंड जब नेचर ही इतना सुंदर है तो उसकी दी हुई चीज़ सुंदर क्यों ना होगी। क्योंकि एक मुहावरा है, मुहावरा नहीं है, ये एक थॉट ही है कि हर व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता है, मगर सफलता उसे सुंदर बना देती है। आप चाहे कितना भी कुरूप हो, चाहे कितना ही बड़ा आपके मुंह पे घाव हो, दाग हो, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, सफल मतलब आईएएस आईपीएस बन गए, पीएम बन जाएंगे, तो अब उस समय आपके घाव और आपके दाग को कोई ध्यान नहीं देगा, आपकी सफलता को कोई सैल्यूट करेगा और आपको वही इज्जत मिलेगी जो एक हाई प्रोफेशनल लोगों को मिलती है। इसलिए सफलता लाना बहुत ज़रूरी है और सफल होने के लिए लगातार हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns covering to the whirlpool of the fair, and felt at once fascinated by the confusion of the world he was entering. A sweet meat seller walked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed round the counter of the food of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. देखिए आगे क्या हुआ कि जैसे ही बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ा तो उसे क्या दिखाई दिया, एक स्वीट शॉप जहाँ बहुत तरह की क्या बिक रहे थे, स्वीट्स। हॉक्ड, स्वीट सेलर हॉक्ड, वो लोग चिल्ला रहे थे, नहीं जैसे कि चिल्लाया जाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एक कॉर्नर पे जहाँ बहुत सारे लोग, क्राउड खड़ा था, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे काउंटर के पास, पैर में पैर सबको एकदम रगड़ा रहा था सबका, क्योंकि वहाँ बहुत सारी स्वीट्स को, कलर्ड स्वीट्स थे जिसके ऊपर आप लोग देखा होगा डेकोरेट किया जाता है, वो वाइट कलर का सिल्वर फॉयल होती है और गोल्ड फॉयल होती है, जिससे क्या होता है कि वायरस और इंसेक्ट्स उसके ऊपर नहीं बैठ पाए। तो और बहुत सारे स्वीट्स वहाँ शाइनिंग कर रहे थे। जैसे ही बच्चा देखा तो उसका जो बर्फी है, फेवरेट स्वीट्स थी, उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आई एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। बर्फी उसका फेवरेट था, इसलिए उसके मुंह में क्या आ गया, पानी। और अंत में वो बोल दिया यहाँ, आई वांट दैट बर्फी। ही स्लोली मर्मर्ड, धीरे से बोला, मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his spell would not be hidden because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. जैसे ही बच्चा बोला कि पापा मम्मी मुझे बर्फी चाहिए, धीरे से बोला, धीरे से बोला, लेकिन क्या, लेकिन उधर से आंसर का, रिप्लाई का इंतजार नहीं किया कि
शायद वो क्या बोलेंगे, क्योंकि बच्चा को पहले से पता है कि वो बोलेंगे कि नहीं तुम बहुत लालची हो, इसलिए बच्चा क्या किया, सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना कुछ बोले वो क्या किया, आगे की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसे पता है सब कुछ कि मेरे पेरेंट्स बड़े कंजूस है, वो मुझे कुछ खरीदने वाले नहीं हैं। A flowers seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar चिल्ला रहा था। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का माला बेचा जा रहा था और बच्चा क्या था, एकदम अट्रैक्टिव था। देखिए बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ा है। The child seemed irritably drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he knew his parents would refuse to buy him those flowers because as he would say that they were cheap. So without waiting for answer he moved on. क्या हुआ कि जैसे ही बच्चा आगे की ओर बढ़ा तो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर बेचा जा रहा था। उस आवाज़ को सुनकर बच्चा क्या किया, बास्केट के पास चला गया और वहाँ जाके धीरे से फिर बोला कि मुझे वह माला की ज़रूरत है, मुझे वो माला चाहिए। लेकिन उसे वापस उसको पता है कि इसके पेरेंट्स उसे क्या करेंगे, खरीदने से रिफ्यूज़ कर देंगे वो सब सारे फ्लावर्स को। इसलिए फिर वह बिना कुछ सोचे उनके उत्तर का इंतज़ार किए, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ कुछ नया ही पेरेंट्स बहाना बनाएंगे, बोलेंगे कि चलो बहुत सस्ता है, वो लेके क्या करोगे, टूट जाएगा फूट जाएगा, मतलब दिस दैट करके कोई बहाना बना के नहीं खरीदेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, isn't it?